Hello students, welcome to my channel, and we are going to discuss chemical reactions and equations, in which we have discussed some concept of oxidation reductions. That means collectively you can call it redox reactions. So taking the example of redox reaction, copper oxide and hydrogen, they react to give copper and H2O. Now you can see where is oxygen going and where is copper is going, right? Now see, copper oxide to copper, it has become copper oxide to copper. And how is that so? Copper oxide to copper. So you can see copper oxide has become copper. That means oxygen is being eliminated from copper oxide. Then removal of oxygen is here. Oxygen is removed, correct? Then you can call it reduction. And look here, हाइड्रोजन हैज बिकम H2O. जो रिएक्टेंट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन था, अब उसको क्या मिल गई? ऑक्सीजन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, ऑक्सीजन इसको मिल गई, तो इसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन, करेक्ट. तो कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराने पर आपको क्या मिलता है? दे रिएक्ट टू गिव कॉपर मेटल प्लस वाटर, एंड कलेक्टिवली इट इज reduction and oxidation as well. So collectively it is called redox reaction. Reduction and oxidation. That is why it is called redox reaction. One more. Let's use an example to explain redox reaction. Copper oxide on heating with hydrogen forms copper metal and water. Copper metal और water बन In गया. this reaction, the oxygen is removed from copper oxide. Here, copper oxide is reduced to copper. On the other hand, hydrogen is changed into water. That is, oxygen is added to hydrogen. So hydrogen is oxidized to water. Hydrogen oxidized हो गया. Thus, we Copper find that reduced. in this reaction, oxidation and reduction occurs together. Therefore, it is redox Redox reaction. All types of reactions See, we result are going in to either discuss exothermic and endothermic reaction. Water exothermic and water endothermic. Exo means when heat is liberated, heat is just liberated out of the reaction, it is called exothermic. हीट आपको बाहर निकलती हुई महसूस होगी तो क्या बोल देंगे? एक्सोथर्मिक है. और ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है तब वो रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक. जहां पर हीट रिक्वायरमेंट है रिएक्शन होने के लिए तो उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक. और जहां पर रिएक्शन के बाद हीट जनरेट हो रही है तो क्या बोलेंगे उसे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो देखें कैसे. the release or the absorption of energy. Depending on energy considerations, chemical reactions can be classified into endothermic and exothermic. Endothermic reactions are those chemical reactions in which energy is absorbed. The energy absorbed is often in the form of heat energy or electrical energy. For example, sending electrical energy through a sodium chloride solution can cause it to break into its जहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब हो तब रिएक्ट होना शुरू हो जाए, राइट? when the reaction occurs when they just gain, they absorb the energy may be it is electrical or it is thermal. thermal means heat. आप हीट देकर रिएक्शन करा रहे हैं, आप करंट देकर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ध्यान से देखेंगे रिएक्शन को. constituents, sodium and chlorine. On the other hand, रिएक्शन हुई ना, exothermic reactions are the chemical reactions in which Exothermic का energy मतलब क्या है? is released. हीट For निकले instance, बाहर. when water is added slowly to a small quantity of quicklime or calcium oxide in a beaker, देखें, आपने एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड रखा है. व्हाट इज दिस? कैल्शियम ऑक्साइड. इसको बोलते हैं क्विक लाइम. क्या बोलते हैं इसे? क्विक लाइम. और इसमें जैसे ही हमने वाटर पोर किया तो रिएक्शन क्या होगी? H2O आपने डाला इसमें प्लस ये, तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या हीट क्या जनरेट होगा? बहुत तेज़ी से हीट निकलेगी. बॉयल्ड दिखता है, ऐसा लग रहा है कि बॉइलिंग हो रही है, जिसको आप देखते हैं जनरली देखा बोला जाता है चूना. चूने में जैसे पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? बॉइलिंग जैसे फील होती है. तो क्या हीट जनरेट हो रही है वहाँ पर. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें आपको लगेगा आपने तो पानी मिलाया था बट वो तो हीट हो रहा है, करेक्ट? ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको आपस में मिलाने पर अपने आप हीट निकलने शुरू हो जाती है तो क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. slaked lime or calcium hydroxide is formed
कैल्शियम beaker gets हाइड्रोक्साइड heated up. स्लेक्टालाइन बन जाएगा. This is due to the evolution of heat during the reaction. Therefore, this Plus heat. is an exothermic reaction. All Exothermic combustion reactions are exothermic reactions. For example, in the burning of coal, a large amount of लकड़ी में heat आग is लगाते हो तो क्या liberated. बनेगा? CO2 बनेगी. Therefore, CO2 के साथ क्या बना? it is an exothermic combustion reaction. बर्न हो गई. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई बर्निंग हो रही है. अगर कोई बर्निंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बोल रहे हो आप? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ऑफ कोर्स कोई आपने कोई भी वुड को सिंबलाइज किससे करेंगे? कार्बन. क्योंकि वुड में है क्या? आप भले ही वुड बोल रहे हैं तो वुड का सिंबल क्या है तो कहोगे कार्बन. तो कार्बन क्यों? क्योंकि वुड क्या है? बना किस चीज से है? कार्बोहाइड्रेट से. और कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला क्या होता है? CnH2O होल एंड नॉट फॉर ऑल. याद रखेंगे, इसके लिए डिस्कशन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फार्मूला होता है बट फॉर नॉट फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, इज जस्ट अ जनरल फार्मूला फॉर सर्टेन. राइट. ओके. तो कार्बन को बर्न किया यानी कि आपने लकड़ी को जलाया. बर्न किया मतलब +O2. रिएक्शन का सिंबल देखें. रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? तो इक्वेशन है, बर्निंग की इक्वेशन पूछे तो क्या लिखोगे? C+O2 = CO2. CO2 तो बना, ये तो जनरल इक्वेशन है. लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा है वो है हीट. ये वो हीट है जो आपको फील होगा और ये वो हीट है जो कि प्लाज्मा फॉर्म में है कि नहीं, तो हम बाद में डिस्कशन कर जाएंगे. देखें तो हीट क्या है? हीट एक ऐसी एनर्जी है. इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर इन दिस रिएक्शन, दैट इज बर्निंग और ऑक्सीडेशन और कंबस्शन रिएक्शन. तो मैं ऑक्सीडेशन बोलूँ, बर्निंग बोलूँ या कंबस्शन बोलूँ, एक ही बात हो गई. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी हम टर्म बोलेंगे इसका मतलब हुआ जो भी रिएक्शन होगी वहाँ पर आपको हीट प्लस के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी, यानी वो हीट